फर्स्ट टॉपिक इज डिविजनल एल्गोरिथम। इस पे बात करेंगे आपके साथ, ठीक। डिविजनल एल्गोरिथम क्या होता है? ये इन योर बुक थ्योरम नंबर 2.1। तो गिवन इंटीजर्स a and b with b greater than 0, and there exist two unique integers q and r satisfy this equation. A equals to bq plus r, where r lie between 0 to b. Okay, so this is a property for r. So we have q is constant or r is remainder. So any integer may be written as in the form of aq plus a equals to bq plus r to satisfy this condition. This is corollary. If a and b two integer with b not equals to 0, there exist two unique integers q and r such that satisfy this equation. A equals to bq plus r. So here 0 less than r or r less than mod b. There's some examples which may be written as 1 may be written as 0 into minus 7 plus 1. Minus 2 written as 1 into minus 7 plus 5. 61 written as minus 8 into minus 7 plus 5. Minus 59 written as. इसके अलावा इसको लिखने का और तरीका भी हो सकता है, but it's a form of division algorithm. So here you find q and r. So what is your r? What is your q? Q is constant or r means remainder. Now we start article 2.3 greatest common divisor GCD, जिसे आप जानते हैं GCD और HCF। ये सब पढ़ा हुआ है आपके पास, रिकॉल कर रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन आती है डिविजिबिलिटी। तो a integer b is said to be divisible by integer a where a not equals to 0 with a symbol a divide b. Means a divide b is the meaning if there exists some integer c such that b equals to ac. A divide b if there exists an integer c, this integer such that b equals to ac. So for example, we write here 4 divide minus 12. So means minus 12 equals to 4 into minus 3. 5 divide 20. So 20 may be written as 4 into 5. Okay. That's the theorem 2.2. For integer a, b, c, the following holds. Following conditions hold. First condition, a divide 0, 1 divide a, and a divide a. Second, if a divide 1, if and only if a equals to plus minus 1. Next, if a divide b and c divide d, then ac divide bd. Next, if a divide b and b divide c, then a divide c. Next, a divide b and b divide a if and only if b equals to sorry, a equals to plus minus b. Next, if a divide b and b not equals to 0, then mod of a less than equals to mod of b. Last one is if a divide b and a divide c, then a divide bx plus cy for some arbitrary integer xy. तो इस थ्योरम का प्रूफ भी कभी कभी तो पार्ट आपके कोर्स में आ जाता है। तो कुछ ज्यादा है नहीं प्रूफ करने के लिए, आपको केवल इतना इस फार्मूले को यूज करना है।
कि b इक्वल्स टू ac, इस प्रॉपर्टी को यूज करते ही चलना है। इसमें इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसको देखिए एक बार आप, इसको कैसे प्रूव करेंगे। a डिवाइड b, तो मींस दिस b written as ac, then सॉरी अदर लेते हैं कोई, तो मैं x ले लेता हूँ, ax, सम इंटीजर x, ओके, then c divide d, c divide d, this means d written as c into y, okay. Now take a multiplication, take multiplication means bd equals to ac into xy, so here this xy is also integer value, so means ac divide pd, तो वो सिंपल है प्रूव करना, ठीक है। तो सेम ये सेम है, ये एसोसिएटिव लॉ है, दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद इसको ट्राई करना आप, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो ये सेम रिजल्ट है, हाँ इसका आपको ध्यान रखना है, इसको माध्यम यूज करेंगे, a डिवाइड b एंड a डिवाइड c, then a डिवाइड bx plus c, तो bx plus c is the a linear combination of b and c where x y some arbitrary integer, maybe positive maybe negative, तो बाय डेफिनेशन अप्लाई करना है आपको, if a divide b imply b written as ax, another one a divide c, so written as c equals to sum ay, ओके। तो क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो एक कंपोनेंट लेके चलना है, एक को लेके चलना। अब अपने कभी पढ़ा होगा ना कि दो एलिमेंट है, इनका जीसीडी क्या है, तो सपोज को अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ सी सेम कंटेंट अप्लाई है, greatest common divisor means GCD. If a and b two integer value with least one of them different from 0, then the greatest common divisor of a and b denoted by GCD AB is the positive integer d satisfy two properties. First one, d divide a and, this symbol is and, d divide b. Next, if c divide a and c divide b, then c less than equals to d. The definition of your GCD. Now we see the example. A GCD of -5 or 5 is 5 by definition. GCD of 8 and 17 is 1. GCD of -8 or -36 is 4. बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है, बस आपसे क्वेश्चन ही पूछता है कि जीसीडी होता है इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, इससे पूछता है। इस थ्योरम के रिजल्ट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आगे यूज करेंगे in this theorem, a not equals to 0, b not equals to 0, two integer, then there exist two integer x y such that GCD of AB is equals to AX plus BY। इसको आपको ध्यान रखना है, इस रिजल्ट को। GCD क्या होगा, जो दो इंटीजर है आपके A और B, इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। GCD क्या होगा, इन दोनों A एंड B का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पे A और B दोनों क्या है, नॉन जीरो, ठीक है बेटी। तो इसमें कोई एक कॉलर आपको याद रखनी है, if not a not equals to 0, b not equals to 0 integer value, then the set t is denoted by ax plus by such that x y are integer is the
precisely the set of all multiple of D मीन्स जो आपका GCD है उसके मल्टीपल इस सारे इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल GCD ऑफ 5 and 2 equals to GCD of -9 or 16, GCD of -27 और -35 is 1 by definition। तो अगले डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्राइम नंबर को तो आप जानते ही हैं, तो उसको यूज करना है। रिलेटिव प्राइम्स, if two integer a and b not equal to 0, they are said to be relatively prime if GCD of ab is 1, जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है। a not equal to 0 integer value, b not equal to 0 integer value, and a and b relatively prime, then there exists some integer x y such that ax plus by equals to 1 means आपको ये पता है ना d equals to ax plus by, और a और b क्या है, रिलेटिवली प्राइम, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, d की वैल्यू 1, तो इसलिए 1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है ax plus by। अभी कॉलर ये है, if GCD of ab is d then GCD of a upon d and b by d is 1। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे आगे। ये इसका एग्जांपल है, GCD -12/6 और 30/6 is 1, GCD of 2 and 5 is also 1। This corollary, if a divides c and b divides c with GCD ab is 1, then ab divide c। थ्योरम आपके पास प्रूफ नहीं है थ्योरम का 2.5 का, पर हमें यूज करना है थ्योरम को। ठीक है, आगे भी तो यूक्लिड लेमा के नाम से है, पहले से जानते हैं। if a divide bc with GCD of ab is 1, then a divide c। दिस इज योर यूक्लिड लेमा। ये आपने क्रिप्टोग्राफी में एक बार आपके सामने आया था और आपको याद हो, और आपको लर्न रखना है, प्रूफ नहीं है आपके कोर्स में इसका, तो इतना ध्यान रखना है कि a डिवाइड bc with the condition GCD of a and b is 1, then a divides c। now come theorem 2.6, let a and b to integer value means a not equals to 0, b not equals to 0 for a positive integer a, then integer d is the GCD of ab, d is the GCD of ab if and only if first condition d divide a and d divide b, whenever c divide a or c divide b then c divide d। okay, now start article 2.7 और 2.5, और ये आपके कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है। कोर्स इससे पहले जो डिस्कस किया है वो जैसे एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है जो आपको क्रिप्टोग्राफी में सॉरी नंबर 3 में यूज करनी है। जीसीडी क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, एक्चुअली आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डायनामिक इक्वेशन यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है 100%। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन ax plus by equals to c is known as डायनामिक इक्वेशन। तो where a b c are integer value and a b are not both 0, the condition a and b not both are 0, then find the solution of this equation। if the value x naught y naught be the solution of 1, then a x naught plus b y naught equals to c। मींस आपने यहाँ पे क्या रिप्लेस किया, x यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपने x naught, यहाँ रिप्लेस कर दिया आपने y naught। अगर x naught y naught इसका इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ये दिखा है, तो हमने इसका एग्जांपल लिया है 3x plus 6y equals to 18।
तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, ये इसका एक सोल्यूशन है, ये भी इसका एक सोल्यूशन है, और ये भी इसका एक सोल्यूशन है। तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, 2x plus 10y plus 17, तो देयर इज नो सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, मींस इसका कोई इंटीजर सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं आपसे डायरेक्टली, मैं इक्वेशन लिखता हूं कि आपके साथ ax plus by equals to c, आप इसे सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो क्या सोल्व करेंगे, चेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपके पास कितने वेरिएबल है इसमें, दो वेरिएबल्स है एक्स वाई, इक्वेशन कितनी हमारे पास में एक है, तो रैंक की वजह से भी कर सकते हैं, तब इसी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। और आपको याद आ रहा हो, बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड दिस इक्वेशन हैव इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो सेम कांसेप्ट यहां पे भी है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैंने आपको तीन सॉल्यूशन बताए हैं, इसके अलावा भी इस एग्जांपल के और सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में, इसका कोई इंटीजर सॉल्यूशन नहीं होगा, बाकी सॉल्यूशन तो होंगे इसके, बस इसका इंटीजर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इक्वेशन 1 की बात हम करते हैं, अभी इसी की बात करते हैं। इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ d divides c where d is the GCD of AB। ये मेन कंटेंट है हमारा इसका, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब d c को डिवाइड करेगा और d क्या होगा, a और b का GCD होगा, ठीक है बेटे। तो इसे प्रूफ करते हैं अभी एक बार हम, ठीक है। लेते हैं इफ r has two integers such that a equals to dr और b equals to ds, d यहाँ पे क्या है, GCD ऑफ AB। तो ऐसा a को आप ऐसा ले सकते हैं और b को आप ऐसा ले सकते हैं फॉर सम इंटीजर r and s, बिकॉज d डिवाइड, मैं इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस को लिख सकते हैं आप d डिवाइड a, तो ऐसा लिख सकते हैं। इस केस को हम लिख सकते हैं कि d डिवाइड b, तो ऐसा लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आगे चलते हैं, इफ x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो आपने क्या किया, इसको लिखा है c इक्वल्स टू ax नॉट प्लस by नॉट, तो आपने यहाँ a की और b की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो क्या होगा, dr x नॉट प्लस ds y नॉट। आपने क्या किया, d को कॉमन ले लिया, ये बचता है r x नॉट प्लस s y नॉट, तो मींस d डिवाइड c, सिंप्लाई d डिवाइड c मींस ये d इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये कोई क्या होगा, अपने आप में ये वैल्यू क्या होगी, कोई इंटीजर वैल्यू होगी, ये कोई इंटीजर वैल्यू होगी, तो d इसको डिवाइड करता है। अब कन्वर्ट्स की बात करते हैं, assume that d divides c, then there exists some integer t, then there exists some integer t such that c equals to dt, then by theorem 2.3 जो मैंने आपसे पीछे बात की थी, इसमें क्या है, a and b two integer value both not are zero, there exist two some integer x y such that GCD of AB equals to ax plus by, so means x naught y naught can be found with the with satisfying this condition, so means d equals to ax naught plus by naught। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूं, c इक्वल्स टू dt, तो यहाँ पर रखिए आप d की वैल्यू ax नॉट प्लस by नॉट इंटू t, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू टी एक्स नॉट और b इंटू टी वाई नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x equals to tx naught or y equals to ty naught is the one of the solution of the equation number 1, is the solution of one of the solution of equation 1, लेकिन ये आपका एक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ भी है एक्चुअली, इसमें इसका प्रूफ किस तरह प्रूफ करना है, तो दो कंडीशन लेके चलनी है, एक बार सॉल्यूशन लेके चलना है और दिखाना है d डिवाइड c,
एक बार डी डिवाइड सी लेके चलना है और सोल्यूशन दिखाना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी थ्योरम आपके साथ 2.9 द लीनियर डायगोनल इक्वेशन ax plus by equals to 0 has a solution if and only if d divides c where d is the GCD of AB। तो मैं आपसे बात कर चुका हूं अभी, इसका प्रूफ मैंने आपको करके दिखाया अभी पीछे, और फिर मैं डिस्कस करूंगा यूनिकनेस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। यूनिकनेस कैसे निकालते हैं, ये कह रहे हैं कि if x naught y naught be any particular solution of equation 1 then other solution is given by x equals to x naught plus b by d into t और y equals to y naught minus a by d into t। ये क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है, इसका थ्योरम का प्रूफ भी आता है और क्वेश्चन भी आता है। where t is the arbitrary integer। now proof let x naught y naught be the solution of equation 1 and other solution is say is this। तो means you take a two solution of equation 1 और दोनों solution equation 1 के हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ax naught plus by naught equals to c equals to ax prime plus by prime। तो मींस मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल लेके चला हूं, यहां से a कॉमन ले लिया और यहां से b कॉमन ले लिया, इसको मान लिया आपने इक्वेशन 1। तो बाय द यूजिंग कॉलरी ऑफ थ्योरम 2.4 relatively prime integer r and s such that a equals to dr और b equals to ds। तो मैंने आप सबसे पीछे डिस्कस किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसमें भी डिनाइज r into this और s into this, तो this imply r divide this quantity s into y minus y prime with GCD r and s is 1 by using Euclid lemma r divide this quantity, जो मैंने आपसे पहले अभी डिस्कस किया है यूक्लिड लेमा। This imply y minus y prime and be written as r into t for some integer t। तो from equation 3 x prime minus x naught equals to st, so this may be x prime be written as x prime written as s की वैल्यू आपने लिखी है b by d यहाँ पे, ठीक है। and also y prime equals to y minus r into t, r की वैल्यू यहाँ पर रखिए तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। then you find the value of this ax naught plus b ax prime plus by prime। तो यहाँ पे क्या किया, x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू प्लेस की है, x प्राइम y प्राइम की वैल्यू यहाँ पर रखी है, ये आपने रखा है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्या बचेगा, c बचेगा। ये क्या आपका c, दिस इज योर c, दिस इज योर c। तो क्या हुआ, कहने का मीनिंग ये हुआ जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किया था, जो लेके चले थे आप x नॉट y नॉट, क्या था आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, तो आपने दूसरा सॉल्यूशन फाइंड किया x प्राइम और y प्राइम। तो मींस ax plus by has an infinitely many solution, one from each is t। ये तो आपने ये सॉल्यूशन लेके चले सिंगल, ये आपका था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक्चुअली ये आपका सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन को जो फाइंड करते हैं। यहाँ पे x नॉट y नॉट प्राइम पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बट other solution can be obtained with the help of this and this, ठीक है। तो अदर सॉल्यूशन, ये अदर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इससे फाइंड करेंगे आप x की वैल्यू और इससे फाइंड करेंगे आप y की वैल्यू, तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा था आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो आपका इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन आपकी गिवन है, अगर कोई सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, एक सॉल्यूशन है x नॉट y नॉट, ये इसका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन का कोई है, तो इसकी हेल्प से आप अदर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो इस फॉर्म का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, इस फॉर्म के होंगे,
तो यहाँ से आप एक्स नोट की वैल्यू पुट करेंगे या वाई नोट की वैल्यू पुट करेंगे। तो मीन्स जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और आपको कोई एक सॉल्यूशन गिवन है तो उस सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होगा, एक्स के लिए ये फार्मूला होगा और वाई के लिए फार्मूला होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, थ्योरम को प्रूफ भी आता है। ठीक है बेटे, उसको अच्छे से समझिए एक बार और देखिए। इसके बाद एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एग्जांपल 2.4 और डेफिनेट इक्वेशन आपको गिवन है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार आया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट फाइंड करना है। तो इसका पहले तो पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है कब नहीं करता है। तो कौन सी फॉर्म है आपकी, ax प्लस by इक्वल्स टू सी। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, जीसीडी फाइंड करेंगे, जीसीडी ऑफ ए बी, जिससे आप क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको चेक करना है कि डी डिवाइड सी, सी डिवाइड डी डिवाइड सी ऐसा है नहीं। तो मिस देखिए आप 4 डिवाइड 1000, तो मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इतना हमने बताया बस। इफ d divides c then this equation has a solution। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं अगर a और b का जीसीडी क्या है, d है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, d इक्वल्स टू a x नॉट प्लस b y नॉट फॉर सम इंटीजर x y। ठीक है बेटे, तो आपको ये पता करना है यहाँ पे x और y का फाइंड करना है, x और y क्या हो सकते हैं। तो मीन्स आप ये है आपका फॉर जीसीडी क्या होगा, 4 इक्वल्स टू 172 इंटू एक्स प्लस 20y। तो यहाँ पे आपको x और y फाइंड करने हैं, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो इसे हम लेके चलेंगे 4 को हम ऐसे ले सकते हैं, 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 8। एक्चुअली ना जो आपने पढ़ा है ना, क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा है, उस टेक्निक को रिकॉल कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम दिस मे बी रिटन एज, तो ये हो सकता है 2 इंटू 12 माइनस 20। इसको भी लिख सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटे, ये लिख दिया आपने। तो मीन्स 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मीन्स आपने लिखा है 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 172 प्लस माइनस 17 इंटू 20। तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू जो आपकी होगी एक्स नॉट, सॉरी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होगी। मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन में 250 से। क्यों किया है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए किया है। तो 4 इंटू 250 इक्वल्स टू 2 इंटू 172 इंटू 250 प्लस माइनस 17 इंटू 20 इंटू दिस, then this memory edge 1000 equals to this quantity. So means your x node is this or y node is this. Your x node is this, y node is this. This is the one of the solution. This is your one of the solution of a given question. Okay. Now you find other solution with the help of this formula, x equals to this and y equals to this. एक्चुअली जो आपने फाइंड किया x नोट की वैल्यू है, ये y नोट की वैल्यू है, आपको यहाँ से ट्रेस करनी है। b की वैल्यू आपके पास में है, d की वैल्यू आपके पास में है। तो मींस जो अदर सॉल्यूशन होंगे इस फॉर्म के होंगे आपके साथ। तो ये t क्या है यहाँ पे, सम आर्बिट्रेरी इंटीजर, उस पर डिपेंड करेगा कि t के कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का एक स्पेशल केस है वैसे, जैसा आता तो नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इफ 5t plus 500 greater than 0 या दिस वैल्यू, so this t equals to minus 99, it is the unique solution। इसको ये क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। स्पेशल केस है, ये आपको गिवन नहीं होता है, आपको लेके चलना होता है। आप चाहो तो दिखाना भी, तो मत दिखाना कि t की वैल्यू यहाँ लाई करती है इसके बीच में। तो t कैसा हो सकता है, t इस टाइप का हो सकता है।
लेकिन टी की वैल्यू दोनों के बीच लाई करती है, तो टी क्या हो सकता है आपको लेके चलना है। जब टी की वैल्यू लेके चलेंगे इसमें आप जे, तो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आगे देखिए, अगला एक कॉलर है आपके साथ। If GCD AB is 1 and x naught y naught is the particular solution of the differential equation x naught y naught, sorry, ax plus by equals to c, then all the given solution is form of x equals to x naught plus bt or y equals to y naught minus at, because GCD of AB is 1। तो आपने थ्योरम किया, उसमें क्या किया, कुछ नहीं किया है, डी की जगह 1 कर दिया। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन एक बार देखिए आप, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। जेड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 132, और साथ में गिवन है ये, तो आपको सॉल्व करना है इक्वेशन में, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। पहले आप एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा उसके हाथ से सॉल्व करेंगे, ट्राई करना, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन 1 करना है आपको, इसके बाद क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 करना है, 6 करना है, 7 करना है। इतना काम करना है आपको, ये होमवर्क है आपके लिए, ट्राई करना है एक बार बेटे। कोशिश करना, मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, ठीक है, तो इसको दोबारा वॉच कर सकते हो आप। तो बेटे आज की क्लास में इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर कोर्स को रिकॉल करना है एक बार आप।